Hello children, welcome to our channel. My name is Rashi and in this video we'll be continuing with our exercise 5.5 of chapter 5 of class 6th. So the name of the chapter is Understanding Elementary Shapes and exercise 5.5 is on page number 100 of our NCERT book. And as you can see, we have completed the first and the second question of this exercise already. So now we'll be starting with question number 4. Again, question number 3 is not as important. So from the examination point of view also, question number 3 is not important. So you can just make a cross and skip it. Now let's come to question number 4, which is the last question of this exercise. Question number 4. So I hope children you are understanding this chapter very well. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, if you have any query, you are always feel free to mention that in our comment section below, because I am not able to see किसको क्या समझ में आ रहा है, किसको क्या नहीं समझ में आ रहा है. So your problems will be the way जिससे मुझे ये पता चलेगा that क्या क्या problems बच्चों को आ सकती हैं. So mention your problems, mention the questions that you have in your mind, and don't ever hesitate to mention them. So question number 4, page number 100 says, study the diagram. So we have to study the diagram. मतलब एक diagram given है हमें इसमें. Line L is perpendicular to line L is perpendicular to line M. Alright, let's draw the diagram. So this is 0 to 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So on 5 we have a line M. ठीक है? So this is L. A B C D E F G H. A B C D. This is E F G and H. So our diagram is complete. This is point P. अब हमारा diagram complete है. ठीक है? So let's see what the question is asking now. So A part says, is CE equal to EG? So is CE equal to EG? Let's check. सबसे पहले let's see what the question says. So the question says, study the diagram. So we have to study the diagram, and it is given that the line L is perpendicular to line M. Line L कौन सी है? This big line. ये पूरी line L है and line M is this one. ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. ठीक है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है. सो ऑल्सो ये जो यूनिट्स हमें गिवन है, ये सब यूनिट्स इक्वल होते हैं. लाइक 0 to 1 जितना है उतना ही 1 to 2 भी है, उतना ही 2 to 3 भी है, उतना ही 3 to 4 भी है, उतना ही 4 to 5 भी है, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 सब इक्वल है. यूनिट्स हैं बिकॉज ये स्केल के. ठीक है? सो इज CE. अब C देखो कहाँ पे है, E देखो कहाँ पे है. दिस इज C, दिस इज E. E इज हेयर, यहाँ पे है E, इस पॉइंट पे. सो ये C से E तक इक्वल है E से G तक. हमें ये बताना है. सो सबसे पहले अगर हम देखें C और E के बीच में कितना गैप है. तो C और E के बीच में C और D का गैप और D और E का गैप, मतलब 2 यूनिट्स का गैप है. राइट? C और D तो 1 यूनिट और D और E सेकेंड यूनिट. तो टोटल इन दोनों के बीच में कितने यूनिट्स हैं?
2 यूनिट्स हैं C और E के बीच में, और ये यूनिट्स हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे गिवन नहीं है कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, नथिंग इज गिवन, सो विल राइट यूनिट्स ओनली, ठीक है। अब C और E के बीच में 2 यूनिट्स का गैप है, और E और G के बीच में E यहाँ से स्टार्ट है, E से F 1, F से G 2, सो अगेन 2 यूनिट्स, तो मतलब यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है, यहाँ पे भी 2 यूनिट्स है, इट मीन्स दोनों इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लेंथ तो गिवन नहीं है कितनी कितनी है, बट यस वी नो दैट यूनिट्स इक्वल होंगे, जितना 0 to 1 होगा उतना ही 1 to 2 होगा, ऐसे ही उतना ही 3 to 4 होगा, उतना ही 4 to 5 होगा। सो C और E के बीच में 2 यूनिट्स हैं और E और G के बीच में भी 2 यूनिट्स हैं, इट मीन्स दे आर इक्वल, सो वी कैन से यस, ठीक है। सो दिस वाज A part. Let's now come to part number B. और उससे पहले हमें ये जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है ना, प्लीज आप इसको पहले ही नोट कर लो, बिकॉज ये मैं रब करूंगी, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होगी हर पॉइंट में आके, हर पार्ट में आके, ठीक है। सो नाउ बी पार्ट सेज does PE bisect CG? So now first we have to understand what do we mean by the word bisect. तो bisect का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करते हैं। सो bisect मीन्स जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे, मतलब वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं, ये तो क्लियर है, पर अगर वो साथ साथ बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, इफ इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, सो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सपोज दिस इज PQ एंड दिस इज AB, एंड ये इस पॉइंट पे आके PQ बाइसेक्ट कर रहा है AB को, तो बाइसेक्ट कर रहा है इसका क्या मतलब है, दैट AO और OB को इक्वल कर दिया, इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। So this is equal and this is equal. AO equal to OB. AO equal to OB. Both are equal, right? So equal parts में divide कर देना is called bisect कर देना, right? So अब PE मतलब P कहाँ पे है, this is P, this is E. So PE जो ये लाइन है, does PE bisect C और G. देखो अगर P बाइसेक्ट करेगा मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सो C से E तक जितना है, क्या E से G तक उतना है, अभी हमने यही तो किया है यहाँ पे। CE में कितने यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स, 1 यूनिट CD एंड DE 2 यूनिट्स, एंड EG में E और F में 1 यूनिट एंड F और G में 2 यूनिट्स, सो इट मीन्स 2 यूनिट्स इधर, 2 यूनिट्स इधर, बीच में ये लाइन है, सो यस सो द आंसर इज यस, PE बाइसेक्ट CG। PE देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज C, दिस इज D, ये है हमारे पास PE, ठीक है, ये है F और ये है G। तो ये जो हमारे पास CG है, पूरी लाइन CG एंड दिस इज PE, ये बाइसेक्ट कब करेगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे। सो CE और EG इक्वल है, ये हमने पार्ट ए में भी प्रूव किया है, सो ये इक्वल है, सो यस इट इज बाइसेक्टेड, ठीक है, बिकॉज बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ये इसके इक्वल है, सो यस इट इज बाइसेक्टेड। ओके, सो दिस वाज B part of question number 4 children. I hope this part is clear. So now we are starting with part C. अब C part पे आते हैं। So C part says, let's rub this. Identify any two line segments So now we need to identify any two line segments for which
PE is the perpendicular bisector for which PE is the perpendicular bisector. So we need to identify any two line segments for which PE is the perpendicular bisector. So perpendicular bisector again means वो दो लाइंस जो 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म कर रही हैं एंड दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड भी कर रही हैं. ठीक है. सो कमिंग टू सी पार्ट. अब सी पार्ट में पीई ये लाइन है, ये किन दो लाइन को और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है. परपेंडिकुलर तो ये ऑलरेडी है, जस्ट हमें बाइसेक्टर पे अब ध्यान देना है. बाइसेक्टर मींस डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो यू सी, अब CG को तो ऑलरेडी पार्ट नंबर बी में प्रूव करके आ चुके हैं दैट यस इट इज CG इज EP इज बाइसेक्टर टू CG. ये तो हम ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं पार्ट नंबर बी में. तो अगर हम DF की बात करते हैं, अभी DF को भी तो PE बाइसेक्ट कर रही है बिकॉज एक यूनिट इधर एक यूनिट इधर. ठीक है. तो एक यूनिट हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, बट इक्वल होनी चाहिए दोनों साइड पे. तो DE में 1 यूनिट एंड EF में भी 1 यूनिट. इट मीन्स DF इज अ लाइन. सबसे पहला तो हो गया DF. DF एक ऐसी लाइन है जिसको जो बाइसेक्ट हो रही है EP से. ठीक है. बिकॉज DE भी 1 यूनिट, EF भी 1 यूनिट. आई होप दिस इज क्लियर. सेकेंड लाइन तो हमें पता ही है CG है, जो हमने पार्ट नंबर बी में भी प्रूव किया है दैट CG इज दी लाइन. CG इज दी लाइन जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है दोनों साइड पे. इधर भी 2 यूनिट्स, इधर भी 2 यूनिट्स. ठीक है. अब थर्ड लाइन हम BH को ले लेते हैं. BH भी एक वही लाइन होगी. देखो BH की अगर हम बात करें सो पहले BE और EF इक्वल होना चाहिए, राइट. सो BE में कितने यूनिट्स हैं? 1, BC 1, CD 2 एंड DE 3 यूनिट्स. इधर आ जाओ. EF 1, FG 2 एंड GH 3 यूनिट्स बोथ साइड्स पे. तो EP अपने आप ही बाइसेक्टर बन गई. ठीक है. सो BH इज दी थर्ड लाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच PE इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दो बतानी थी, ये तो ऑलरेडी रिपीटेड है, तो आई थिंक ये दोनों इनफ है. DF एंड BH दोनों साइड्स इक्वल यूनिट्स होनी चाहिए. देन इट मीन्स EP इज बाइसेक्टर. बाइसेक्ट करना मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ऑलराइट. So I hope part C is also clear to you. So now let's come to the last part, D part. So after C part, now we are starting with part number D. So D part says, are these true? First is AC is greater than FG. Second is CD is equal to GH, and third is PC is smaller than EH. Let's check ये दोनों, ये all the three parts are true or not. So first part is AC is greater than FG. AC कहाँ पे? पहले first locate AC. AC में कितने यूनिट्स आ रहे हैं? AB में 1 and BC में 2. So total 2 units in AC, right? Total 2 units in AC. So यहाँ पे लिख लेते हैं 2 units. And FG में just single unit है. So 1 unit. So obviously 2 यूनिट वाला ज्यादा बड़ा होगा, एंड यहाँ पे भी यही बोल रहा है AC is greater than FG. So it means it is true. तो ये वाले क्वेश्चंस हमें ऐसे सॉल्व करने हैं by checking डायग्राम के थ्रू. So yes, this is true, right? So this was the first part.
अब सेकंड पार्ट पे आते हैं. सेकंड पार्ट पे इट इज सी डी इक्वल टू जी एच. अब सी डी को पहले लोकेट करते हैं. सी डी सो सिंगल यूनिट का है, ठीक है. एंड जी एच अगेन सिंगल यूनिट का. सो दिस इज 1 यूनिट and this is 1 unit, and as I told you एक scale पे units equally होंगे. so again this is true, ये भी true है because दोनों 1 unit के हैं. so CD equal to GH हो गई. okay, coming to the third part. तो third part में BC is smaller than EH. पहले BC पे आते हैं. so BC is here. तो BC में हमारे पास एक ही यूनिट है. एंड EH में कितनी यूनिट्स है? EF1, FG2 एंड GH3. सो BC इज 1 यूनिट एंड EH इज 3 यूनिट्स. सो कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियसली EH बड़ा होगा. और यहाँ पे भी ये कह रहा है BC इज स्मॉलर देन EH. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो इट मीन्स चिल्ड्रन ऑल दी 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर डी ऑफ पार्ट नंबर डी ट्रू हैं. तीनों ट्रू हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है. ऑल राइट, सो नाउ दिस इज मोर क्लियर. ठीक है, सो डी पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. With this we have completed our question number 4 also, children. So this was the last part of question number 4 and also the last question of exercise 5.5, and with this we have completed our exercise 5.5 also. So I hope this question is clear to you. बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये. तो इसमें हमें डायग्राम को स्टडी करना था एंड हमें गिवन था दैट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम. एल और एम दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं. सो वी हैव टू टेल दैट इज सीई इक्वल टू ईजी. CE equal to EG. So yes, इधर भी 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट. So yes, they are equal. In part number B, does PE bisect CG? So bisect का मतलब ये होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. So PE अगर CG को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, so yes, it is bisecting. CG is here. So C और E में 2 यूनिट का गैप